Blood. Blood is a red color liquid tissue which flow throughout the body. The flow of blood throughout the body is maintained by heart. Heart maintain करता है. Blood is very important as its circulation in major mean of transport of various substances throughout the body. Okay. Composition of blood. Blood is a liquid connective tissue. Blood is a liquid connective tissue. Blood consists of two important parts. Blood consists of two important parts. The first is plasma, that is 55%, and blood cell, that is 45%. Plasma. The liquid matrix of the blood is called plasma. The liquid matrix of the blood, plasma. Plasma is colorless या slightly yellowish. Plasma is the most of the plasma is formed by water. Most of the plasma is formed by water. In addition to water, it contains various type of hormone, enzyme, protein, other chemicals. Three important type of protein are present in plasma. Plasma contain three important type of protein. First is fibrinogen, second is albumin, and third is gamma globulin. Blood cell या corpuscles are three type. First is RBC, red blood corpuscles. WBC, white blood corpuscles. And third is blood platelet. RBC, red blood corpuscles. WBC, white blood corpuscles, and blood platelet. Blood cell are three type. First is erythrocyte, RBC, leukocyte, WBC, and thrombocyte are platelet. Erythrocyte, leukocyte, and thrombocyte. Leukocyte are five type. First is neutrophil, basophil, eosinophil, monocyte, lymphocyte. Neutrophil, basophil, eosinophil, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट के 5 पार्ट होते हैं. ल्यूकोसाइट. एरिथ्रोसाइट, RBC, रेड ब्लड corpuscles. These are very small disc shaped biconcave cell. डिस्क शेप्ड बाइकॉन्केव सेल होता है एरिथ्रोसाइट यानी RBC. These have no nucleus. याद रखने वाली बात तो सिर्फ इतनी है कि these have no nucleus and other cell organelle. These cells are red in color because they contain blood pigment known as hemoglobin. RBC का कलर कैसा होता है? रेड. क्यों? क्योंकि ये पिगमेंट कंटेन करते हैं, ब्लड पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इट गिव रेड कलर to the RBC. It contain iron.
हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करते हैं, इसलिए ये आरबीसी को रेड कलर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, और रिस्पायरेटरी गैस क्या क्या होता है, CO2 और O2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, रेड ब्लड सेल हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट 120 डेज। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का होता है। ठीक, नॉर्मल आरबीसी काउंट इज अबाउट 50 लाख, यानी 5 मिलियन। कहते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक, तो 50 लाख इज इक्वल टू 5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। A fall in RBC count is called anemia। आरबीसी की ब्लड के अंदर कमी हो जाए तो बीमारी डिजीज प्रवृत्ति होता है, डिजीज जिसे कहते हैं अनीमिया। एंड इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, अगर आरबीसी काउंट बढ़ जाए तो पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट या कह सकते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। व्हाइट ब्लड सेल आर लेसर इन नंबर देन द रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का जो नंबर होता है वो लेस होता है, किससे, रेड ब्लड सेल से। सेकेंड पॉइंट इज द नॉर्मल WBC काउंट इज 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। A fall in WBC count is called ल्यूकोपिया। WBC का अगर काउंट करेंगे तो 8000 आएगा पर मिलीमीटर क्यूब, और WBC की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं ल्यूकोपिया, ल्यूकोपेनिया। They appear colorless because they do not have any pigment। आरबीसी में क्यों रेड कलर का था, क्योंकि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट था, वो भी था हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट था, आयरन, और आयरन का कलर कैसा था, रेड। WBC आर वेरियस टाइप सच एज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। They protect the body from infection। WBC are also referred to as soldier of the body। याद रखना, ये लाइन जरूर याद रखना यार, ठीक है, कि WBC को हम सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। क्यों, क्योंकि ये बॉडी को हमारे प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, बॉडी को हमारे प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, इसीलिए इसे हम कहते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी WBC को। यूसिनोफिल का सेफ, बेसोफिल का सेफ, न्यूट्रोफिल का सेफ, मोनोसाइट का सेफ और लिम्फोसाइट का सेफ याद रखना। देखो ये होता है इसका सेफ। ठीक, ओके। प्लेटिलेट, थर्ड इज प्लेटिलेट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। दीज आर ओवल डिस्क लाइक सेल। दीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी के समय इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। किसमें, प्लेटिलेट में। प्लेटिलेट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटिलेट हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। प्रिवेंट ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ इंजरी, मतलब आप कहीं चोटिल हो जाते हैं, ठीक है, इंजर हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है उसे कोगुलेट कर देता है, तो रोक देता है, ठीक है। व्हेन इंजरी प्लेटलेट ट्रिगर द क्लॉटिंग प्रोसेस को ट्रिगर शुरू कर देता है, स्टार्ट। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। किस तरीके से प्लेटलेट जो होता है ब्लड क्लॉटिंग कराता है,
तो थोड़ा बल्कि हो गया पूरा। देखिए ध्यान से, समझ में आएगा पूरी तरह 100% समझ में आएगा। ठीक है। सम टाइम एन इंजरी में रेप्चर अ ब्लड वेसल। सम टाइम क्या होता है, रेप्चर होते हैं ब्लड वेसल। ठीक, दिस कॉज एन इमेंस ब्लड लॉस। ठीक, विच मे इवन लीड टू डेथ। अगर लगातार ब्लड का लॉस होता रहे तो अंत में क्या होगा, डेथ। बॉडी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस ब्लड लॉस। बॉडी के पास खुद का एक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा वह इन लॉस हुए ब्लड को रोक सके। क्यों, अगर ब्लड लॉस हुए ब्लड रुके ना तो आदमी का क्या हो सकता है, या किसी का भी डेथ। दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, दिस mechanism of prevention of loss of blood is called blood clotting. In this method, an insoluble clot is formed at the site of injury. ठीक, blood clotting is a complex process. blood clotting कैसा प्रोसेस, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर, जिसमें वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट कैल्शियम आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम आयन अगर ना रहे, कैल्शियम आयन बहुत मेन रोल निभाता है ब्लड क्लॉटिंग में। एंड विटामिन के, कैल्शियम आयन एंड विटामिन के। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, these are present in the blood stream in a soluble form। ये ब्लड में soluble form में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनसॉल्युबल फाइब्रिन, जो फाइब्रिनोजन सॉल्युबल था वो इनसॉल्युबल हो जाता है क्लॉटिंग के दौरान और बदल जाता है किसमें, फाइब्रिन में। ठीक है। द ब्लड डू नॉट क्लॉट इन ब्लड वेसल एट प्रेजेंट एंटी क्लॉटिंग। अच्छा सही है कि ब्लड में जब ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है तो फिर ये वेसल के अंदर क्यों क्लॉट नहीं कर देता। जब वेसल रैप्चर होता है उस समय ये क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल के अंदर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है जिसे हीपेरिन कहते हैं। और हीपेरिन जो होता है ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट होने से रोकता है। ठीक, मतलब कि अगर ब्लड जो वेसल है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए वेसल है, ठीक, इस वेसल में ब्लड है, तो जब ये रैप्चर होता है उसी समय क्यों जो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन है, ये क्यों एक्टिव होता है उस समय, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंजरी प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रेजेंट इन वेसल soluble form, but at the time of injury they are changed in soluble form फाइब्रिनोजन किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में। ठीक है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन बदल जाता है। ठीक है, और ब्लड वेसल के अंदर क्यों नहीं क्लॉट हो पाता है, क्योंकि इस ब्लड वेसल के अंदर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। कहते हैं एंटी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है और ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कोई और नहीं, हीपेरिन है। क्लियर हो गया, हीपेरिन है। ओके।